Am I audible? Yes, yes. Good morning, Arif sir. Good Our morning. HOD, Muhammad Arif Akhtar, has joined. So now I would like to hand over the session to Dr. Muhammad Arif Akhtar to introduce and let the session begin. Thank you. Uh, Thank you, Santanu sir. Good morning, everyone. I, Muhammad Arif Akhtar, Assistant Professor and Head, Department of Commerce, Hindi Shift, PV College, welcomes you all in this workshop on CV writing and soft skill development. This workshop is jointly organized by Department of Commerce, Hindi Shift, and Career Counseling Cell, BB College, Asansol. I welcome our today's speaker, Dr. Sushil Kumar Parikh, Director Examination, Institute of Cost Accountant of India. Dr. Parikh is a renowned professor and well qualified. His qualification spans from LLB, MBA, and PhD. Dr. Parikh was earlier a professor in Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal. He has served in Colombo Plan under Ministry of External Affairs, Government of India to Bhutan. He had over 21 years of teaching and administrative experience. He is also author of three renowned books. He had published a number of articles in various national and international level journals. Not only this, he is also a reviewer of several international journals. So, this was his short introduction. I welcome you once again, sir, and thanks you for being our resource person. Now it's over you. It's over to you, sir. Thank you, Arif sir. Uh, am I audible, sir? Dr. Parikh sir? Yes, Yeah. yes, yes. Audible, Okay, audible. sir. Before your starting, I would like to ask Dr. Arnob Ganguly sir to just brief something about the career counseling sir. Then you will Okay. say, Please, please. please. First of all, I would like to thank and congratulate the Department of Commerce Hindi Shift. I am really grateful to Dr. Sushil Kumar Parekh for agreeing to be our resource person, and I'm thankful for the students and I that they have attended, and I hope that you people will gain certain skills in making how to make a CV. So a bit about the career counseling and placement cell of Banwari Lal Bhalotia College. This career counsel cell was actually, this idea was conceived very long back in 2004 when our currently the principal at that time, he was a professor here, teacher here. So Dr. Amitabh Basu, he and then Dr. Trideep Shantapa Kundu and some other people at that time, they had sort of made this career counseling cell. They had made a small cell, but this was essentially apart from one or two stray projects. This did not go very well. So till 2020, there were in between stray incidents of recruitment which was not recorded and all these things. But in 2020, when I became the coordinator of this, from that day onwards, this cell was striving very, very, very ardently to cater the career needs of the students. When I came into the coordinatorship of this particular cell, this was actually during the COVID times when the students were sitting at their homes, and then classes were online, exams online, and their prospects of a job and career was very nil. So at that time, we started working to build the confidence of students. And then gradually, within 1 or 2 years, several recruitment drives, several initiatives have been taken with and without collaborations. And so a program like this, where a CV writing skill, this was always on our charts. This was absolutely needed. Now, when students face an interview, whenever a recruitment drive comes, they all ask for a CV.
it is mandatory that you bring a CV and your original mark sheets and testimonials. So if your CV has got certain tricks, you must highlight certain portions and you must leave out irrelevant portions. Irrelevant portions, if you fill them up too much, then basically what you do is that you make it bulky and the recruiter doesn't read it. You must highlight the skills which you have, the work which you can do, from which the company can expect some activities from you. So there are certain ways of doing a CV. Just writing ऐसे लिखना है मैं लिख दिया बस, that is not the case. You must be very critical and careful in your CV and go ahead with it. So I will stop here, and I would like to invite Dr. Sushil Parekh to please give your opinions on CV writing. Thank you. Okay, Yes, thank you sir. very much, sir. Now I would like to hand over the session to Dr. Sushil Parekh, and I ask all the students to be interactive. You will get lots of knowledge out of this program. Okay, thank you, sir. Please. So first of all, I would like to say good morning to each one of you, especially the students. And apart from that, I would like to thank for taking initiatives for conducting such a nice program to Dr. Santanu Malik, Dr. Ganguly, and Muhammad Arif sir for making students convenient to get a job. I think it is very easy and simple as far as the things are concerned. The knowledge must be transformed into some economic activities. Economic activities means the ones the student will get a job. Because in the today's modern world, we cannot survive without any economic activities. It's not the era where we can only think about roti, kapda and makan. Now we have to think about roti, kapda, makan and mobile also, or gadi also. So for those, to meet all those activities, we require economic activities, and to fulfill economic activities, at least we require a job. So as we require a job has got some criterias that when and how I can get a job, and what are the qualities required to get a job. These are very, very fundamental questions which need to be answered. And one more thing I would like to all the students, because this program is conducted for the students, I would like to ask them in which language they are convenient, Hindi, English or Bengali, or all the three languages. Whatever the languages you want that I must deliver you my speech, I will go for that language so that you will get benefit out of it. I don't want that I will keep on speaking in English and you don't understand anything, and ultimately you will find that there is no use of such sessions. So communication barrier, language communication barrier should not be there. If you are not comfortable in English, I'm very happy to talk to you in Hindi or Bengali or mixture of all the languages. What is the opinion of the students? May I listen, students, please? So many of from Hindi set, so we like to continue this session in Hindi language. हाँ ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब आपने कह दिया है कि हिंदी में ही आप बातचीत करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं हिंदी में ही आपको कम्युनिकेट करूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए. इसके अलावा अब क्या है कि जब आप बीकॉम कोर्स कर लोगे या ग्रेजुएशन कर लोगे, आपके सामने बहुत से ऑप्शंस होते हैं. सबसे पहला ऑप्शन, ग्रेजुएशन करने के बाद पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको एक नौकरी मिले या फिर आप हायर कोर्सेज के लिए जाओ. अगर आपको नौकरी के लिए जाना है या अप्लाई करना है तो आपका जो नॉलेज है उसको अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में ट्रांसफर करने का समय है. सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लिए फिर घर में बैठ गए फिर और एक नया कोर्स कर लेंगे, उसके बाद फिर और एक नया कोर्स कर लेंगे और ये कंटिन्यूटी रहेगा. ये भी एक ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म ऑप्शन है. लेकिन जिनके पेरेंट्स ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चलो ग्रेजुएशन कर लिया बच्चे ने, अभी मेरे को नौकरी करना है, तो इस ऐसी जब सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहला क्या, आप नौकरी करने के लिए कहीं पे जाओगे आप, तो जहां आप नौकरी के लिए अप्लाई करोगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये समझना आपको. आप कल तक स्टूडेंट थे, जैसे ही आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में अपीयर करते हो, वो जो कंपनी जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको एज ए स्टूडेंट नहीं नौकरी पे रखेगा, वो एज ए एम्प्लॉई आपको नौकरी पे रखेगा. आपको ये बात मेरी समझ में आई?
Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लीजिए आज आप बीकॉम कर रहे हो, तो आप कॉलेज जाते हो एज ए स्टूडेंट जाते हो, आज एज ए एम्प्लॉय जाते हो? As a student, As a sir. student. तो आपके पास क्या सारी फ्रीडम है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, कैंटीन गए, क्लास किया नहीं किया, घूमे, बातचीत किए, क्लासेस की बहुत अच्छे से नहीं की, पढ़ाई की नहीं की, सारी फ्रीडम है आपके पास, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right. Right, Right. sir. लेकिन जब आप नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करोगे तो जो आपको अपने जॉब पे रखेगा वो एक स्टूडेंट को जॉब पे रखेगा या एक एम्प्लॉय को जॉब पे रखेगा? As an employee, sir. Employee, sir. तो आपका जो मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटअप है ना, वो बहुत जरूरी है कि वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसे मान लीजिए 24 आवर्स में नहीं हो सकता ये चीज। आज आप स्टूडेंट हो, कल आप नौकरी के लिए गए, दूसरे दिन लगे यार मैं तो एम्प्लॉय बन गया। तो आपको अपना मेंटल मेकअप भी ठीक से करना है कि मैं एक एम्प्लॉय के लिए, अब एक स्टूडेंट की क्वालिटी और एक एम्प्लॉय की क्वालिटी एक हो सकती है या अलग अलग हो सकती है? अलग अलग होगी सर। अलग 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 सर। तो अब आपको नया क्वालिटी एक्वायर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। हाँ, आप लोग Yes, sir. बताते रहिए हैं, आपको कहीं डाउट हो मेरे से पूछिएगा। अब मान लीजिए जैसे आपके घर में आपके पापा जॉब करते हैं और आप स्टूडेंट हो, तो आप अपने आप को एक दिन कंपेयर करके देखो कि पापा क्या क्या करते हैं और मैं क्या क्या करता हूँ। या पापा का बिजनेस ही है, मान लो दुकान ही है या कुछ और काम करते हैं, तो पापा सुबह पहले उठते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, दुकान पे जाते हैं, काम करते हैं, फिर वो आते हैं, खाना खाते हैं। और एक आप स्टूडेंट हो, तो आपने क्या देखा, चलो कॉलेज गए, घूम के आए, दोस्त से बात कर लिए, व्हाट्सएप और फेसबुक कर ली, फिर थोड़ा आईपीएल देख लिया, थोड़ा पढ़ाई कर लिया। तो अब दोनों का रूटीन और जो मेंटल है, मेंटल कंडीशन, जो साइकोलॉजिकल कंडीशन, वो एक जैसी है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग है मान लीजिए जब आप, यस, हेलो, किसी को कुछ कहना है क्या? हेलो, नो सर। नहीं सर, नहीं सर, कंटिन्यू। हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि आपकी जो स्किल है वो एम्प्लॉय की स्किल तो अभी तक नहीं आई है आपके पास। आपके पास तो किसकी स्किल है? सिर्फ स्टूडेंट की स्किल है। स्टूडेंट की। तो आप अगर ये स्टूडेंट की स्किल लेके नौकरी करने जाओगे तो आपको क्या नौकरी मिलेगी? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है जो आपको नौकरी पे रखेगा? वो तो एक एम्प्लॉय की स्किल एक्सपेक्ट कर रहा है ना आपसे। उसकी आशा क्या है कि मेरे को एक अच्छा एम्प्लॉय मिले। वो ये नहीं चाहता मेरे को एक स्टूडेंट अच्छा मिले। अगर कोई टीचर है तो वो क्या चाहता है? मेरे को एक अच्छा स्टूडेंट मिले। ठीक से समझो आप चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। अगर ये आप बात आपको समझ में आ गई तो आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे और आप अच्छे तरीके से आपको नौकरी भी मिलेगी। एक टीचर है वो क्या चाहता है कि मेरे को एक अच्छा स्टूडेंट मिले, और एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है? मेरे को एक अच्छा एम्प्लॉय मिले। समझ में आया? आप एक अच्छे स्टूडेंट मान लो कॉलेज में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे एम्प्लॉय भी होगे। तो आपको वो एम्प्लॉय की जो क्वालिटीज है वो भी आपको अपने अंदर तैयार करनी पड़ेगी कि कहीं पे जॉब करने के लिए हमको बेसिक जो क्वालिटीज होती है, बेसिक क्वालिटीज जो होती है वो क्वालिटीज हमारे अंदर है या नहीं है। एकदम एकदम ये चीज को एकदम नोट करके रखो आप लोग। और मैं इसीलिए आज एग्री भी हुआ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ऐसे सेशंस मैक्सिमम इंग्लिश में ही होते हैं। तो मैं भी सोचा कि चलो आज कंडक्ट कराते हैं एक ऐसा सेशन ताकि स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिले। अभी आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल एकदम एकदम क्लियरली आप सोचो कि एक एम्प्लॉय की क्वालिटी क्या हो सकती है और एक स्टूडेंट की क्वालिटी क्या हो सकती है। आज आप स्टूडेंट हो, कल आप एम्प्लॉय बनोगे। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में देने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, जैसे ही आप उस डोर के अंदर जाओगे वैसे ही आपको एक्सपेक्टेशन और आपका रोल बदल जाएगा। आपका स्टूडेंट से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक एम्प्लॉय की तरह। समझ में आया? अब एम्प्लॉय के तरह जब आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो आपका बिहेवियर, एक्टिविटी, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस और स्किल्स ये भी एक एम्प्लॉय के तरह लगेगी, ना कि एक स्टूडेंट के तरह। स्टूडेंट की तरह क्या है, आप गलती करने का आपके पास स्कोप है, लेकिन जब आप एम्प्लॉय हो जाओगे आपके पास गलती करने का स्कोप नहीं है, बहुत कम हो जाता है। गलती तो होती है एम्प्लॉय में भी, लेकिन उसका अभी आप 10 गलती करते हो तो वहां पे आपको 1 गलती करना है या 2 गलती करना है, या कोई भी काम करने से पहले ओवर केयर लेना है जो भी आप नहीं लेते हो। तो अब जब
आपका रोल बदलेगा तो वो रोल का सबसे पहले आपको जो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है, वो आपका सीवी है। तो सीवी जब आप बनाओगे तो आपको बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि एम्प्लॉयर इम्प्रेस हो जाए कि आपके पास आपकी जो क्वालिटीज होनी चाहिए एज ए एम्प्लॉय, वो क्वालिटीज आपके पास है। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज और भी है, मैं सीवी पे आऊंगा। सबसे पहली चीज है कि आपको, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप अभी यूट्यूब और इतना आपके पास चैनल्स है, आप लोग अपनी इंग्लिश सबसे पहले इम्प्रूव कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, या मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन तो इंग्लिश में एग्जाम देते होंगे ना आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और एक मिनिमम लेवल पे इंग्लिश आनी चाहिए कि ताकि आप अपना कन्वर्सेशन जो है वो कर सके, बातचीत कर सके। और जब आप बातचीत अच्छे तरीके से इंग्लिश में करेंगे, आपको ये सीखना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, अगर आपको नौकरी करनी है तो, या बिजनेस भी करना है तो भी। अगर किसी ने सोचा है कि मेरे को नौकरी करना ही नहीं है, काम भी नहीं करना, तो वो अगर सीखे चाहे नहीं सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके पढ़ने से और नहीं पढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी रखना है कि आपको इंग्लिश सीखना है, स्पोकन इंग्लिश आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आप धीरे धीरे करके यूट्यूब या बहुत से चैनल्स है जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है, स्पोकन इंग्लिश, आप वहां से इंग्लिश सीखिए। अपने ग्रामर्स के एरर्स को कम कीजिए, ताकि आप कहीं पे भी एम्प्लॉय की क्वालिटी आपके पास आ जाए। आज जैसे आप क्लास करते हो तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप क्लास में इंग्लिश में ही बोलते हो, आप बंगाली में भी बोल सकते हो, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, या बहुत स्टूडेंट इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। लेकिन जब एम्प्लॉयर के पास आप जाओगे तो वो क्या चाहेगा, आपके पास सारी स्किल होनी चाहिए। हिंदी भी बोल सकते हो, इंग्लिश भी बोल सकते हो, बंगाली भी बोल सकते हो, बढ़िया है ना। जितना आप तरीके की भाषा आप जानते हो, आपके लिए वो एडवांटेज है, वो आपकी एक स्किल है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने इंग्लिश पे ध्यान देना है, और इंग्लिश आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। सही है? एग्री और डिसएग्री? और आपको लगता है यहाँ पे कहीं डाउट है? Yes, sir. बताइए। हाँ, अगर आप Agree. Yes, sir. हाँ, अब क्या है कि अभी देखो क्या है कि मतलब अभी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आपको पता नहीं आपको आसनसोल में जॉब मिलेगा, या चेन्नई में जॉब मिलेगा, या बेंगलोर में जॉब मिलेगा, या दिल्ली में जॉब मिलेगा। आप हिंदी मान लीजिए आपको आती है, तो इंग्लिश तो हिंदुस्तान के हर कोने में लोग बोलते हैं और समझते हैं। अब साउथ इंडिया में मान लीजिए आपको किसी को चेन्नई में जॉब मिल गया और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? आपको तो तमिल और तेलुगु भी नहीं आती, फिर तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? और मान लीजिए आपको जॉब भी मिल गया और कंपनी ने वहां भेज भी दिया, तो फिर आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? ये पॉइंट नोटिंग का है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी इसमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपना जो लैंग्वेज का जो बैरियर है, इस बैरियर को हमको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छी हिंदी सीखनी चाहिए, अच्छी बंगाली सीखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो बंगला में या हिंदी में बात करें उनसे बंगाली या हिंदी में ही बात कीजिए। लेकिन जिनको नहीं आती है ये दोनों लैंग्वेज, तो वो हमको चेंज होना पड़ेगा वहां पर, कि हम उनको, अगर उनकी भाषा में नहीं बात कर सके तो इंग्लिश में हम बातचीत करके अपना जो थिंकिंग है, या अपना जो अंडरस्टैंडिंग point है, of वो, view. हाँ, वो उनके संग अपन शेयर कर सके। इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपन शेयर कर सके और एक ही प्लेटफॉर्म पे आ सके। तब इसमें सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन, कहीं पे भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे वो पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने किसी ने इंटरव्यू दिया आज तक कहीं पे भी? No, sir. नहीं दिया आपने? तो आप लोगों को एक अच्छा चीज बताता हूँ। आप लोग कॉलेज अगर इंटरव्यू अरेंज करती है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाती है, या कोई और भी बिजीनेस की वजह से नहीं होता है, तो आप खुद इंटरव्यू देने जाइए। नौकरी करने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस लेने के लिए। Okay, समझ में sir. आया मेरा बात? Yes, sir. Yes, sir. आपको नौकरी करने के लिए नहीं जाना है, लेकिन आपको इंटरव्यू देना है किस लिए? एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर आपको Experience. नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी है, और नहीं मिले तो क्या मिलेगा आपको? Experience. एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, आपने क्या जवाब दिया, और उसको जवाब को किस तरीके से दिया, तो उनको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज गलत लगी, कहाँ हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, मैंने पहले ही कह दिया, आप स्टूडेंट हो और आपके पास कौन सी क्वालिटी चाहिए?
एम्प्लॉय की क्वालिटी चाहिए। Employee तो अगर इन दोनों में गैप तो होगा ना, कहीं ना कहीं तो गैप है ना, Yes, कि आपकी क्वालिटी अलग है Yes, स्टूडेंट की और एम्प्लॉय की क्वालिटी अलग है। इन दोनों क्वालिटी में गैप होगा तो उस गैप को आपको भरना है। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग होगा, कि जैसे मैंने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप कहीं पे भी इंटरव्यू वर्ल्ड में देने जाओगे, ये पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए। आज yes, नहीं, sir. आप 10 साल बाद भी कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो यही क्वेश्चन आपसे लोग पूछेंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, बहुत लोगों को यही नहीं पता है अपने बारे में क्या बोलना है। आपकी एज अभी 20 प्लस होगी ना, सबकी एज। तो 20 साल में अगर इंसान ये नहीं सीखेगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो फिर सिर्फ पढ़ने से या कुछ सम्स करने से तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। आपको प्रैक्टिकल होना है अभी। समझ में आया मेरा बात? Yes, yes, sir. sir. तो अभी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका मैं थोड़ा आपको फॉर्मूला देता हूँ। जैसे आप सबसे पहले अपना नाम बोलेंगे, उसके बाद आप अपना अभी आप क्या कर रहे हो वो बोलोगे। जैसे मान लो आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम बोलोगे। इसके पहले आपने क्या किया, क्लास 12 पास किया, वो उसको बोलोगे। कौन से साल में किया, कौन से स्कूल में किया, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिला आपको। फिर क्लास 10 का बोलोगे, बीकॉम बोला, 12 बोला, क्लास 10 बोला। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप तब एजुकेशन से शुरू नहीं करोगे, आप एक्सपीरियंस से शुरू करोगे पहले, कि मैं अभी ये करता हूँ और इसके साथ मैं बीकॉम किया या कर रहा हूँ, या उसके पहले मैंने क्लास 12 किया, इस स्कूल से किया, इतना परसेंट। आप नोट भी कर सकते हैं ये चीजें, और इतना परसेंटेज मेरे को मार्क्स मिला। उसके बाद आपका क्लास 10 का भी आप बताओगे कि मैं इस स्कूल से पास किया, मेरा इतना परसेंटेज ऑफ मार्क्स था। आपका ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपने एक्सपीरियंस अपना नाम बोल दिया, एक्सपीरियंस बोल दिया, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बोल दिया आपने। अब आप बोलोगे आपको कंप्यूटर या कोई दूसरी आईटी स्किल्स आती है कि नहीं आती है, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बोलोगे कि आपके पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, पापा ये करते हैं, मेरे इतने भाई बहन हैं। इतना बोल के ये इंट्रोडक्शन का एक पार्ट होता है आपका, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हो या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कोई डाउट है यहाँ तक? No, No, sir. sir. आप कहीं पे भी आप, हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं, अगर जैसे एज अ एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर सर, तो उसके लिए क्या इंटरव्यू रहता है, किस तरह का, मतलब वो लोग किस तरह। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, बताएंगे फिर से क्वेश्चन अपना? सर मतलब जैसे जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर रहता है सर, वो लोग अपना इंट्रोडक्शन किस तरह देते हैं। अरे एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई? सर एम्प्लॉय सॉरी सर, एम्प्लॉयर नहीं। एम्प्लॉयर बोला, मैं डाउट में आ गया कोई। नहीं सर, एम्प्लॉय। हाँ, तो वो पहले अपना एक्सपीरियंस बताएगा। मान लो आप कहीं पे काम करते हो, मार्केटिंग का काम करते हो या अकाउंटेंट का काम करते हो, तो आप बताओगे कि मेरा नाम ये है और मैं अभी फिलहाल में यहाँ अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ, इतने साल से काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना बताओगे आप वहाँ क्या क्या काम करते हो। अकाउंटेंट में भी तो बहुत तरह का काम होता है, आप जीएसटी का काम करते हो या कंप्यूटर पे करते हो या टैली में काम करते हो, क्या क्या काम करते हो और कितने साल से काम कर Sir, रहे हो आप I have interrupted once. Yes, Yeah, so students are requested to ask their question in their comfortable language. Actually, sir has known English, Bengali, Hindi, anything. So you can ask the question in if you want to Bengali or in English or in Hindi. Okay, so Yes. that will be more effective for you also to make understand the question to sir. Yes, sir. Please continue. Yes. तो अगर आप एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हो तो आप अपना एक्सपीरियंस के बारे में पहले बताओगे, आपने कहाँ किया, कितने साल से कर रहे हो, आप क्या काम करते हो वहाँ पे। उसके बाद आप बताओगे कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या, आपने पढ़ाई कहाँ से की। वो जरूर फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप फिर जॉब चेंज करना क्यों चाहते हो। क्योंकि आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो तो फिर वो अगला क्वेश्चन उनका यही होगा कि आप अपना नौकरी चेंज करना क्यों चाहते हो। तो जिस कंपनी में आप नौकरी चेंज करना चाहते हो या जहां ज्वाइन करना चाहते हो, उस कंपनी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, किस तरीके का काम करती है, उसका बिजनेस कहाँ कहाँ पर है। तो उनको लगेगा कि आप नौकरी मिलने से पहले ही आपने कंपनी के बारे में इतनी कुछ जानकारी हासिल कर रखी है, तो इसका मतलब आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कंपनी में काम करने के लिए। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए।
सिर्फ ये नहीं है कि हम गए, अप्लाई किया, हमको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ऐसे नहीं चल सकता चीजें। आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा, यू हैव टू शो दैट हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। तो आपको ये दिखाना है कि आप वहां पे नौकरी करने के लिए आप क्यों इंटरेस्टेड है, क्या क्यों इच्छुक है आप, ताकि आपको वो जॉब दे तो उनको क्या फायदा मिलेगा। देखिए, कोई आपको नौकरी नहीं रखेगा जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि आप उसके लिए फायदेमंद हो या नहीं हो। आप एक सामान बाजार से खरीदते हो या कोई चीज खरीदते हो तो वो कब खरीदते हो, आपको जब बेनिफिट मिलता है उस चीज से तभी आप खरीदते हो, राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। Right, sir. Yes, sir. वैसे ही आपकी जो सैलरी है वो आपकी एक वैल्यू है जिसके अगेंस्ट में आप उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्विस दोगे। आज मान लो अपन ये सब मोबाइल पे आज अपन ये प्रोग्राम या सेशन कर रहे हैं, हमने 10,000 15,000 20,000 में अपना मोबाइल खरीदा, तो आज मोबाइल से हमको जो यूटिलिटी मिल रही है या फायदा मिल रहा है तभी तो हम मोबाइल खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं ना। यस सर। उसी तरीके से एक एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो उसका प्राइस है, उसकी वैल्यू है, वो उसके अगेंस्ट में उसको उस एम्प्लॉयर को सर्विसेज देना है कि हमको उतनी सर्विसेज उनको दे देनी है ताकि उनको कभी ये फील नहीं हो कि हम जो सैलरी दे रहे हैं या तनख्वाह दे रहे हैं मेरा काम नहीं हो रहा है, आपको उससे ज्यादा करना है ना। तो यस सर। जब एम्प्लॉयर को ये पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है काम करने के लिए तो वो आपको जॉब पे रखेंगे ही रखेंगे। आपको ये उनको इंटीमेट कर देना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको उनके दिमाग में ये चीज डाल देनी है कि ये आप जो जॉब करने आए हैं ये आपके बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि कंपनी के बेनिफिट के लिए ज्यादा है, आपके लिए कम बेनिफिट है। अभी बात समझ में, एक्सपीरियंस वालों के लिए। और जो फ्रेशर्स है उनके लिए मैंने बताया ही, पहले आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन से शुरू करेंगे और आप सारी अपने डिटेल्स दे देंगे। ये एक सीक्वेंस में बोलना है और इसको आप रोज घर में 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करो इंग्लिश में। समझ में आया मेरा बात? Okay, Yes, sir. sir. क्या करोगे, जैसे मान लो किसी का नाम, किसी एक जन का नाम, आप किसी का भी एक नाम बोलो आप यहाँ पे। Shifa Parveen. तो सिफा परवीन पहले अपना बोले कि माय नेम इज सिफा परवीन, आई एम जस्ट स्टडिंग इन बीकॉम this year, my percentage of marks this, I passed out from this college, I passed out my class 10 plus 2 from this school, my percentage of marks was this, I passed in this year class 10, I passed from this school, this percentage of marks, I know computer, tally, whatever you know, and my parents name is this, my father is working here, I have one brother or sister, जो भी आपका background हो बताएंगे। This is how you have to introduce yourself। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इसको घर Yes, में sir. रोज, इसको घर में आप 2 बार 5 बार 4 बार प्रैक्टिस करो आप बोलने का। इसको पहले एक पेपर पे लिखो आप कि मेरे को ये बोलना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपको लगेगा। अभी आप एमकॉम कर लो, बीकॉम कर लो, एमबीए कर लो, कुछ भी कर लो, पीएचडी कर लो, ये क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जवाब देना ही है। और आप जितना अच्छा जवाब दोगे, जितना इम्प्रेसिव जवाब दोगे, क्या जवाब देना है हमको? इम्प्रेसिव जवाब देना है, उतना ही आपका जॉब मिलने का चांसेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। समझ में आया बात? अब कुछ Yes, बेसिक, sir. अब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको बात बताता हूँ सीवी के बारे में, क्योंकि ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन पहले आप रेडी कीजिए अपना, फिर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, Yes, sir. आप किस में अच्छे हैं, किस में अच्छे नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग ही बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट, दिस दैट। इसका मतलब ये नहीं है। स्ट्रेंथ 2 तरीके की होती है, एक बिहेवियरल स्ट्रेंथ होती है और एक टेक्निकल स्ट्रेंथ होती है। तो बिहेवियरल स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप ऑनेस्ट है, आप लॉयल है, आप हार्ड वर्किंग है। और टेक्निकल स्ट्रेंथ आपकी क्या है, जैसे मान लीजिए आप में से कितने को कंप्यूटर आता है चलाना, या आपको एक्सेल कितना अच्छा आता है, या वर्ड कितना अच्छा आता है, आपको टैली आती है कि नहीं आती। जैसे आप सभी बीकॉम के स्टूडेंट है तो आप लोगों में कितने लोगों को टैली आती है, या आप बाद में फ्यूचर में क्या अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या क्या है। अब बेसिक स्किल में आज देखो कंप्यूटर आपको आना ही चाहिए,
इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गई। अगर आपके संग इसमें कंप्यूटर में भी आपको मैं बताऊं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो चल रही है, आपको एक्सेल जरूर सीखना है। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट, और आपको अच्छा एक्सेल नहीं आता तो आपकी वैल्यू बहुत कम है मार्केट में। और अगर आपको अकाउंटेंसी थोड़ी कम भी आती है और लेकिन एक्सेल बहुत अच्छा आता है तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगा, मैं ये बता सकता हूँ। क्योंकि अभी धीरे धीरे जिस तरीके से वर्ल्ड बढ़ रहा है आगे, तो मान लो हम लोग 20 साल 25 साल पहले पास आउट किए, तब एक अलग दुनिया थी, आज एक अलग दुनिया है। तो आज, तब हमने कंप्यूटर नहीं छुआ था जब बीकॉम में थे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग चीज है, ताकि ये आपको जानकारी चाहिए। जब हम लोग मान लो ग्रेजुएशन में थे तो हमने कभी कंप्यूटर नहीं छुआ, उस टाइम में कंप्यूटर नहीं था, नया नया आया था बिल्कुल, तो लोगों के पास कंप्यूटर नहीं था। लेकिन आज कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो अपने आप को डेवलप करना आपको, और एवरी डे डेवलप करना आपको। ऐसे नहीं कि बस सीख लिया बस हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं सीखना है। तो अगर ऐसा रहेगा तो आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो कभी भी। आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए आपको एवरीडे आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। इसमें भी आजकल जो है एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आपको डाटा पे से ज्यादा काम होता है, फ्यूचर में भी डाटा पे ही काम होना है। अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, मान लीजिए आप अकाउंटेंट ही हो और आपके कंपनी 5 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है और वो पूछती है कि कंपनी पूछी भाई सबसे ज्यादा बिक्री कौन सा हुआ, सबसे कम बिक्री कौन सा हुआ, किस मार्केट में सबसे कम हुआ, तो आपको डाटा फिल्टर है, ये सारी चीजें एक्सेल में अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पिवट टेबल बनाना है, फिल्ट्रेशन है, वी लुकअप है, ये सब चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। अब इसको सीखने के लिए भी एक अच्छा रास्ता बताता हूँ। कुछ बोलेंगे हमारे पास फीस नहीं है देने के लिए, या हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाके एक्सेल के ट्रेनिंग सेंटर में या कंप्यूटर सेंटर में सीखे। सबसे बढ़िया यूट्यूब में बहुत से एक्सेल के इतने अच्छे चैनल हैं, आप हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, उर्दू, जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप उसमें जाइए, आपको देखे वो सिखा देगा मोबाइल पे यूट्यूब में जाके। हाँ, आपको डाटा जरूर खर्च करना पड़ेगा कुछ, और फिर आप कहीं पे कंप्यूटर सेंटर में जाके 1 घंटा उसको प्रैक्टिस कीजिए वीक में, कि मैंने ये सीखा था, यहाँ ये हुआ, या एक कान में आप गाना सुनते हो उस तरीके से उसको सीखो और कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस करो उस चीज को। तो ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को सभी को, ये सब चीज सीखिए ताकि आपकी स्किल आए। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ हो गई। क्या हो गई आपकी ये स्ट्रेंथ हो गई। तो जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उस वक्त आपके पास सिर्फ बीकॉम था। अब आपके पास क्या क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए हो गया, आपको एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, आप कंप्यूटर चला सकते हो, आप डाटा पे काम कर सकते हो, आपको टैली आती है। तो आपको क्या लगता है एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी पे रखेगा उस, और जो दूसरे कैंडिडेट मान लो आपके संग और इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उनमें से अगर आपको अपने आप को बेहतर साबित करना है, क्या साबित करना है, बेहतर साबित करना। बेहतर और बेस्ट साबित करना, तो बेस्ट साबित करने के लिए आपकी स्किल्स भी बेस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यस सर। हाँ, तो ये स्किल्स आपको एक्वायर करना है इस तरीके से। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया इसमें आपको किसी को कोई डाउट है किसी तरीके का, या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए फ्रीली, है, विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई तरीके का हिचकिचाना नहीं है, आपको पूछिए, कुछ पूछना होता है आपके बारे में। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर पूछ रही थी मैं कि अगर इंटरव्यूअर नाम लेके पूछे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो फिर अपना नाम उसमें बोलना है या फिर नहीं बोलना है? हाँ, नहीं, आप अपना नाम बोल सकते हैं, माई सेल्फ करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं। माई सेल्फ सो एंड तो, जैसे आपका क्या नाम है? सर संगीता पांडे। हाँ, तो आप नाम बोल सकते हो, माई सेल्फ संगीता पंडित, आई एम करंटली स्टडीइंग इन बीकॉम, जो भी आपका है वो बोल सकते हो कंटिन्यूटी। मैंने तो आपको दिया ना एक सीक्वेंस, और बाद में मैं आपको शायद ये सेशन के बाद एक नोट भी भेज दूंगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सर उसमें तो ये भी बोल सकते हैं ना कि एज यू नो माय नेम, उसके बाद अपना सेल्फ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी आपने पहले बार ही उसको कंट्राडिक्ट कर दिया, तो वो फिर आपको बोलेगा देन व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू। ये सर अगर वो नाम ले लेंगे मेरा कि अपने बारे में बताओ, तो वैसे तो मुझे यही ना बोलना पड़ेगा कि एज यू नो माय नेम, फिर अपने बारे में। हाँ हाँ, वो भी आप बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो, लेकिन आप कभी कंट्राडिक्ट मत करना इंटरव्यू में। आपको बताऊं, वो अगर जो पूछना चाहते हैं आप सिंपल जवाब दो, आप ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में मत जाओ, फिर उसने मेरे को ऐसा पूछा तो मेरे को ऐसा जवाब देना, ऐसा मत करो। आप सिंपल तरीके से, एकदम हम्बल तरीके से रहो, ताकि ये जो सामने बैठा है उसको लगे कि आपने जो बोला है
कि आपसे जो पूछा गया वही आपने उसको जवाब दिया। मान लो उसको नाम पता भी है, ठीक है, आपका जैसे आपका नाम देके बोला तो फिर ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको डायरेक्ट ही पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तब तो आपको अपना नाम बोलना पड़ेगा ना। अब उसमें एक चीज और भी है कि मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड में आपका सीवी किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, ठीक से समझो आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और वहां 4 या 5 लोग बैठे हैं, तो उन चारों या पांचों को कैसे पता चलेगा आपका नाम ये है? मान लीजिए किसी ने Yes, बोला, sir. किसी में नहीं बोला, नहीं पता चलेगा ना। तो आप बोल दोगे तो क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर, ये भी है। समझ में आया मेरा बात? मान लो आप तो 1 to 1 Yes, जब आप इंटरव्यू दोगे तो अलग बात है, लेकिन मान लो जहां 5 या 7 लोग बैठे हैं और वो थोड़ा दूर दूर चेयर पे बैठे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? मान लो किसी ने नाम अपने सुना ही नाम नहीं है। बताएंगे सर। हाँ, तो आपको सिचुएशन को देख लेना है वहां। यही डिफरेंस है ना। मैंने क्या कहा, एक स्टूडेंट से आपका ट्रांजिशन हो रहा है एक एम्प्लॉय के तरीके से, तो आपको फिर एम्प्लॉय के तरीके से सोचनी है चीजों को, ठीक है? ओके सर। और यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखो अब मैं बताता हूँ आपको, आप अपना सीवी किस तरीके से लिखोगे, इसका एक फॉर्मेट मैं भेज भी दूंगा बाद में शांतनु सर को, तो वो आपसे शेयर कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, जहां पे आप जॉब करने जाओगे, इसको आप नोट भी कर सकते हो। आपको जॉब करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, वाई यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन ए पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपसे मैं पूछूं कि हाँ, बर्णवाल, दीपक बर्णवाल का कुछ क्वेश्चन था सर वीकनेस नहीं बताए सर। हाँ, वीकनेस बताता हूँ। वीकनेस अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी वीकनेस क्या है, तो क्या बताओगे आप? सर कोई ऐसा सर वीकनेस वीकनेस तो जो मालूम नहीं जॉब सर। मतलब अच्छा, मैं इसका एक इंटरेस्टिंग जवाब देता हूँ आप लोग को, है, आप लोग ठीक से सुनना। बहुत ही अच्छा जवाब है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया कि 10 बजे मेरी क्लास थी आज की। अच्छा सर, टाइमिंग प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, पहले मेरा बात सुनो, पहले अभी अब इंटेलिजेंट मत बनो, है, पहले मेरी बात सुन लो दीपक, उसके बाद बात करना। सिर्फ टाइमिंग के नहीं, और भी बहुत सा इशू है इसमें। जैसे मान लो कॉलेज में आप कोई एक फंक्शन करते हो, तो आप सबकी हेल्प करते हो, लेकिन कुछ लोग आपकी हेल्प नहीं करते। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? यस यस सर। सर। हुआ है ना? तो ये आपकी वीकनेस है या दूसरे की वीकनेस है? हमारी सर। तुम्हारी कैसे हुई? सर तो यही है, दूसरों हम लोग का विकेट। तुम्हारी कैसे वीकनेस हुई? तो दूसरे की वीकनेस हुई ना, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, आप तो उसकी हेल्प करते हो, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं करता है। सर तो हम लोग ने उस पे बिलीव किया इसीलिए हेल्प की, तो यही हो सकता है तो हमारा तो वीकेस्ट तो, पॉइंट। तो हाँ, वेरी गुड। अभी बताता हूँ मैं आपको। अब आपको किसी ने मीटिंग में बुलाया 10 बजे आना है, आप ठीक 9:55 पे 9:55 पे पहुंच गए, ठीक है, और 10 बज गई और जिसको आना था उसने फोन किया 10 बजे आपको कि मेरे को और 40 मिनट 50 मिनट लगेगी आने में, तो आपको फीलिंग कैसा होगा? गुस्सा आएगा सर। गुस्सा आएगा, वेरी गुड। अब देखो मैं इसी में आपको जवाब देता हूँ वीकनेस क्या है। सो इंग्लिश में बताता हूँ मैं आपको, है, नॉर्मली आई ट्राई टू रीच इन टाइम एंड आई एम वेरी पंचुअल, बट इफ समवन इज नॉट पंचुअल, it is really irritating for me, it irritates me। समझ में आ गया बात? दिस इज माई यस वीकनेस। सर। यस सर। आपने दूसरे का जो निगेटिव पॉइंट है उसको आपने पॉजिटिव तरीके से क्या किया, पेश किया। जैसे टीम वर्क है, सर आई एम ए वेरी गुड टीम मेंबर एंड आई ऑलवेज ट्राई टू कंट्रीब्यूट a lot while some job or assignment is given to me, but if some members of the team are not cooperating and participating, it really hurts me, this is my weakness। क्या समझ में आया ये? यस सर। यस सर। आपको
आपको 100 तरीके के आंसर बता सकता हूँ मैं इसी से रिलेटेड। सर एक और सर, हाँ, अच्छा लग गया क्या एक आपको? और सर। I am basically a very cooperative person in my day-to-day life, but if someone is not cooperative to achieve the goals, it really hurts me. सर एक और एग्जांपल सर। I am very hardworking person in my life, but if my other team members are not that hardworking, sometimes it frustrates me. होता है कि नहीं होता है? आप बहुत मेहनत कर रहे हो, यस सर। लेकिन आपके संग में जो काम करते हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है अरे मैं किन लोगों के बीच में आके फंस गया? राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट सर। यस सर। तो आपका जो इमोशनल जो फीलिंग है उसमें डिफरेंसेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपकी एक वीकनेस हो गई। अगर मान लो आप कोई काम करते हो, आप ऑनेस्ट हो, लेकिन कोई आदमी डिसऑनेस्ट है, तो वो आपको क्या करेगा? हमेशा हर्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। हाँ सर। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना वीकनेस को। नहीं कोई क्या बोलेगा, अरे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग बट आई ट्राई टू अचीव द वर्क बट आई कुड नॉट डू ऑलवेज। बस हो गया इंटरव्यू बोर्ड में काम खत्म उसका। समझ में आया बात? वीकनेस वाला। यस सर। यस सर। पक्का दिमाग में घुस गया ना? या और एग्जांपल दो चार? घुस गया सर। हो गया सर। आप ऐसे ही बोल सकते हैं हमें। हाँ, इस तरीके से आपको आंसर क्या है ना, किसी दूसरे पे चीज को डालना, क्योंकि दूसरे भी बहुत बार गलती करते हैं। आप ऐसे सोचो, एक आदमी गाड़ी चला रहा है और आप एक अच्छे ड्राइवर हो, किसी दूसरे ने आके आपके गाड़ी को ठोक दिया, तो क्या करोगे? गलती आपकी थी या दूसरे की थी? दूसरे की थी। दूसरे की लेकिन सर। नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा हुआ। हमारा। हाँ, वैसे ही ये वीकनेस वाला पॉइंट है। आप टाइम पे पहुंचे लेकिन कोई दूसरा आदमी लेट से आया, तो इसमें आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? सब बुरा लगा है तो सर। बुरा लगेगा। हाँ, बुरा लगेगा। तो जब बुरा लगता है तो ये आपका वीक पॉइंट हो गया ना। लेकिन आपने इसमें अपना क्या दिखाया? अच्छा ही दिखाया कि मैं तो पंचुअल हूँ, लेकिन कोई दूसरा पंचुअल नहीं है, तो उससे मेरे को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सर ये तो मेरा एम्प्लॉयर के पास तो वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा सर कि मैं पंचुअल हूँ सर। हाँ, इसीलिए तो आपको ऐसा जवाब बना के दिया गया है ना ये मेरा। ठीक है, अब चलते हैं अपन सीवी की तरफ। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव अपने एक निर्धारण करते हैं कि आप कहीं पे भी जॉब में अप्लाई करोगे तो आप क्यों अप्लाई कर रहे हो वहां पे। आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है आपको, कि आप मान लीजिए आप वहां परफॉर्म करोगे, आप वहां कंट्रीब्यूट करोगे, उसका एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस बनाना है कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ए जॉब। मान लीजिए अगर कोई बीकॉम करके मार्केटिंग या सेल्स का जॉब करता है, या कोई एचआर का जॉब करता है, या अकाउंटेंट का जॉब करता है, तो वो अपने आप का ऑब्जेक्टिव सबसे फर्स्ट सेंटेंस होता है जो सीवी में अपन लिखते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम, एड्रेस ये लिखोगे। तो नेम जो भी लिखोगे आप अपना, उसको बोल्ड करना है हमेशा, और उसको 14 साइज में रखना है। और सीवी लिखते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, स्पेलिंग ठीक से चेक करना आप लोग अपना। सीवी में कहीं पे भी कोई स्पेलिंग जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत होती है, और उसके वजह से वो एम्प्लॉयर उससे पूछता है कि आपकी तो स्पेलिंग गलत आ रही है इसमें, तो आपको इंग्लिश नहीं आती ठीक से। तो जब आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन टाइम मिलता है, तो आपको स्पेलिंग ठीक से उसको चेक करके ही सीवी में बनाना चाहिए। ठीक है। और डायरेक्ट कंप्यूटर में भी बहुत बार स्पेलिंग गलत आ जाती है, आपको ये भी बता दूं। तो आप अपनी स्पेलिंग्स को ठीक से चेक कीजिए जब सीवी बनाएं। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आप क्यों वहां जॉब करना चाहते हो। ये जो ऑब्जेक्टिव है एकदम पेज के मिडिल में आएगा। जैसे मान लीजिए A4 साइज का पेज है, उसके ठीक एकदम बीच में मिडिल अलाइनमेंट होगा, और उसको अंडरलाइन करोगे आप ऑब्जेक्टिव को। फिर उसके नीचे आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे, उसकी साइज 12 होगी और वो नॉर्मल होगी, वो बोल्ड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ठीक ऑब्जेक्टिव के नीचे अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस लिखोगे, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एजुकेशन लिखोगे। फिर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिखोगे 1 2 3 करके, आपके कौन से कंपनी में काम करते हो, कितने समय से कितने समय तक काम किया, और आपकी पोस्ट क्या है, नेम ऑफ द कंपनी या एम्प्लॉयर, ड्यूरेशन, डेजिग्नेशन आपका, एंड व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप वहां पे क्या काम करते हैं। अगर आपका एजुकेशन है तो एजुकेशन में जैसे मैंने बताया, आप पहले बीकॉम से शुरू करोगे, क्लास 12 में जाओगे, उसके बाद आप
क्लास 10 में जाओगे आप उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, स्कूल, वो सॉरी सारे डिटेल्स उसमें आप मेंशन करोगे एजुकेशन में। इसके बाद आप अपना प्रश्न, इसके बाद अपना आईटी और स्किल्स भी आप मेंशन करोगे। अगर आपको कंप्यूटर आता है, टैली आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, वर्ड आता है, या आपकी कंप्यूटर में टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी है, वो भी आप मेंशन करोगे। इसके बाद आप आ जाओगे अपने सर्टिफिकेशंस पे। क्या आपने कोई कंप्यूटर पे या कोई और तरीके का सर्टिफिकेशन किया है? बहुत से बच्चे करते हैं ना, बीकॉम करने के साथ साथ कोई और सर्टिफिकेट कर लिया, या कुछ और तरीके का कोर्स किया है, या इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया है, या कोई जर्मन लैंग्वेज, इटालियन, कोई भी तरीके का लैंग्वेज का कोर्स कर लिया आपने, उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में आपके फादर का नाम है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है वो मेंशन करना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अब किसी को बंगाली स्पीकिंग करना था, मान लो रीडिंग राइटिंग नहीं आता, तो आप लिख सकते हो स्पीक बंगाली। तो इस तरीके से आप उसको मेंशन करोगे। फिर नीचे में राइट साइड के बिलो में आप अपना नाम लिखोगे, जहां सिग्नेचर का एक स्पेस होगा, और लेफ्ट साइड में आप प्लेस और डेट डालोगे। ठीक है, ये आपका एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मेट हुआ। इसमें सबसे पहले अलाइनमेंट हमको देखना है, और जो मेन हेडिंग्स है वो सभी बोल्ड में होंगे, और बाद बाकी जो भी अंदर की उसकी डिटेलिंग होगी वो 12 में होगी। टाइम्स न्यू रोमन में आप लिख सकते हो, या वर्धना में, किसी में भी एक अच्छे चूज करके टाइम्स न्यू रोमन में आप नॉर्मली कर सकते हो उसको, और आप अलाइनमेंट वगैरह ठीक से देख सकते हो उसका, किस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप जब आपका ये, जब आपने ये सीवी तैयार कर लिया, अब ये सीवी तैयार करने के बाद आपको देखना है कि आपका और क्या क्या आप ऐड कर सकते हो जो मिसिंग है। यहाँ पे मिसिंग है, समझ में आ रहा है मेरा बात? तो मिसिंग कुछ चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज यहाँ पे मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो आपको वो चीज को फिर से मेंशन कर देना है कि आपका ये जो एरिया है वो मिसिंग है या आपसे छूट गया है। तो आप जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करो तो एक ही सीवी नहीं रखना आपको, आपको सीवी अपग्रेड कर लेना है अपने समय, टाइम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपने एक सीवी आज बनाया फिर 1 साल बाद भी वो सेम सीवी चलेगा। और इस सीवी की सॉफ्ट कॉपी जो है वो आप हमेशा अपने ईमेल आईडी में रखिए। कहाँ रखना है आपको? ईमेल आईडी में। हाँ, आप जब भी एक बार अपना सीवी बना लो उसको ईमेल आईडी में रखो, और आपको हर समय आपने जैसे कुछ नया कोर्स कर लिया या नया कुछ कर लिया या आपको नया कुछ आइडिया आ गया, आप उसको सीवी को अपडेट करते रहो हमेशा। क्या हो गया? अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करोगे तो क्या होगा, आपको नई नई चीजें उसमें अगर कुछ ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हो फिर। नहीं तो क्या होगा कि वो बाद में आपको जब रहेगा तो वो छूट जाएगी। एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि सीवी को इसलिए मेल में रखते हैं, जैसे मान लो आज आप आसनसोल में रह रहे हो, कल कलकत्ता आ गए, तो फिर आपको कंप्यूटर सेंटर नहीं जाना पड़े वो पूरा बनाने के लिए। मान लो आप जॉब के लिए आए हो और आपको रास्ते में कुछ याद आया, अरे मेरे सीवी में अगर ये भी होता तो अच्छा होता, तो फिर क्या करोगे आप? कोई भी कंप्यूटर सेंटर पे गए, ईमेल आईडी खोला, डाउनलोड किया और उसमें आपने अपडेट किया, बस, और आपका एक नया सीवी तैयार हो गया। इसलिए उसको पेन ड्राइव या कहीं पे ऐसे जगह पे स्टोर कर सकते हो आप, लेकिन आपको हमेशा अपने एक मेल आईडी में एक कॉपी जरूर रखनी चाहिए इस चीज की। या आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे क्लास 10 है, 12 है, या आपका जो ग्रेजुएशन है, या जो भी सर्टिफिकेट किया, इनको स्कैन करके अपने मेल आईडी में हमेशा रखो, ताकि ये एक आज के लिए नहीं है, आपके 10 साल बाद भी सेम चीज ही काम आएगी। तो अभी क्या करते हो आप? जेरेक्स कराते हो, ये करते हो, फिर दौड़ना है, जाना है, कहीं डॉक्यूमेंट खो गया तो मुश्किल है। ये कुछ बेसिक स्किल्स है, ठीक है? इन बेसिक स्किल्स को आपको यूज करना अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। अभी तक जो मैंने बताया इसमें कुछ डाउट है या आपको समझ में आ रही सब चीजें? सर सब समझ में आ गया। कोई और क्वेश्चन है अभी आप लोगों को, अभी तक जो मैंने बताया इसमें? नो सर। सर सर ये सीबी के सेक्शन में ना सर, आप उसको थोड़ा बता दीजिए कि किस वे में अच्छा से प्रेजेंट करें हम लोग। हाँ, मैंने बोला ना, मैं आपको एक कॉपी भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, ऐसे मैं दिखा सकता हूँ आपको स्क्रीन शेयरिंग करके अभी।
एक मिनट दिखाता हूँ। सर वैसे आप कहाँ के रहने वाले सर? ये तो अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग में, इसलिए नहीं हो रहा है ये। हेलो। Yes, sir. सर हाँ, क्यों, क्या क्वेश्चन ये पूछ लिया आपने, कहाँ का रहने वाला हूँ? सर ऐसे ही सर, कोलकाता मैं के इंडिया से। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर राजस्थान के सर। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बड़ा बंगाल में ही हुआ। मैंने यहीं पे पढ़ाई वढ़ाई मेरी पूरी की, और फिर अच्छा अच्छा सर। मैं पिलानी बोल के एक जगह राजस्थान में, छोटा सा टाउन है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मैं प्रोफेसर बन गया। मैंने पीएचडी की, फिर मैं कलकत्ता में बहुत साल प्रोफेसर था, डायरेक्टर भी था यूनिवर्सिटी में। तो सर अभी कहाँ के प्रोफेसर है सर आप? अभी मैं सीएमए इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हूँ अभी। अच्छा सेम है। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ना, यस सर। पता है ना आपको सीएमए? यस सर यस सर। उसमें डायरेक्टर हूँ मैं अभी। तो मैं, हम लोगों ने भी आपके तरह ही लाइफ को स्टार्ट किया था, जर्नी को, इसलिए तो मैं आपको सारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना मेरा, ताकि आप भी जीवन में कुछ करो, आप बढ़िया बनो, आपके जीवन में भी अच्छे तरीके से आप अचीवमेंट करो, आप हमेशा प्रोग्रेस करो। मैं आज इसीलिए ये प्रोग्राम अटेंड किया, अदरवाइज मैं अभी प्रोग्राम नहीं करवाता हूँ ऐसे, क्योंकि, लेकिन मैं सोचा नहीं, बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए। हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, अगर हम आपके संग शेयर नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है फ्यूचर के लिए, राइट और रॉन्ग? यस सर राइट। नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे पढ़ के बेकार कर दिया, गलती कर दी हमने, हमको कुछ और कर लेते तो अच्छा रहता, बीकॉम के बाद क्यों हमने पढ़ाई की, इतनी मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं मिला। ऐसे कभी नहीं सोचना आपको। आप जो काम करोगे उसको पूरे दिल से करना है और एकदम पूरे मेहनत से करना है। तो जब हमने भी ग्रेजुएशन की, तो हमको थोड़ी पता था कि एक दिन हम इतने अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल सर। कभी नहीं सोचा था। तो आपको कोशिश करनी है हमेशा, और जब आप कोशिश करते रहोगे, कोशिश में लगे रहना आपको। ऐसे नहीं कि आपको लगा नहीं रहना है, आपने चलो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे नहीं करना आपको। आपको हमेशा लगे रहना है। फिर मैं बाहर भूटान भी गया, वहां पे प्रोफेसर था, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे को डेपुटेशन मिला। तो मैं वहां पे भी 3 साल था। वहां पे भी हमने स्टूडेंट्स को इस तरीके से, वहां के स्टूडेंट्स को हमने प्रोग्राम कराया, और हमको बहुत सा मौका मिला कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन प्रोफेसर्स के संग भी काम करने का मौका मिला हमको। मेरे दोस्त भी है बहुत से। लेकिन जब हम भी ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमको थोड़ी पता था कि हमारे जीवन में ऐसा होगा कुछ। तो वैसे आज आपको पता थोड़ी कि आपके 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद क्या होगा लाइफ में, नहीं पता ना आपको। नहीं सर। लेकिन आपको अच्छे करने की कोशिश हमेशा जारी रखनी है। क्या करना है? यस सर, कोशिश हमेशा जारी। हाँ, और आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, या बंगाली मीडियम की स्टूडेंट हूँ, या उर्दू मीडियम की स्टूडेंट हूँ, या मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। आप सब कुछ इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है वो, कि आप कितनी कोशिश करते हो। जी सर बिल्कुल। और ये काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और इसके लिए आपको ये नहीं कि आपको हमेशा टॉपर आना है क्लास में, ये भी गलत गलत धारणा है लोगों की।
आपको क्या करना आना चाहिए, सबसे पहले अपने अंदर में डिसिप्लिन लाना है कि मेरे को जो कोई काम दिया जाए मेरे को उसको ठीक तरीके से करना है, टाइम पे करना है। जैसे मतलब सर प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज है। उसके बाद आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन जिसको बोल सकते हैं, खुद का के ऊपर खुद का अनुशासन होना बहुत जरूरी चीज है कि हमको ये इस टाइम पे अगर ये काम दिया गया है तो ये करना, आज ही कंप्लीट करना, कल पे नहीं छोड़ना उसको। अगर कल पे छोड़ोगे तो वो काम आपका फिर हमेशा कल वाला फिर परसों हो जाएगा, फिर एक दिन वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और आप उसके काम के बोझ के नीचे दब जाओगे। आपको ये बेसिक कुछ एम्प्लॉइज की स्किल है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जिनको इंग्लिश अच्छे से स्पीकिंग नहीं आती, उनको आज से इस क्लास के बाद से ही उनको आप गाना या और दूसरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक कम करके आप उसको सीखो ना, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। और आप ये इंटरटेनमेंट या फेसबुक करोगे उससे आपकी कोई क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। और आप अपने लाइफ में और भी कुछ चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस वजह से शायद इस सेशन का पार्ट हो भी सकता है एक तरीके से, क्योंकि अभी अपन डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। आप फिक्स करो कि मेरे को दिन में सिर्फ आधा घंटा ही फेसबुक या व्हाट्सएप चलाना है। एक बार आधा घंटा सुबह चलाऊंगा, एक बार दोपहर में आधा घंटा चलाऊंगा और एक बार रात को आधा घंटा चलाऊंगा। जैसे मेडिसिन लेते हैं ना, वैसे ही इसको करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी पूरे दिन भर चलाते हैं, 2-2 मिनट में, 5 मिनट में। इससे ये एक डिजीज हो गई है अभी। अभी आपको लगता है 5 मिनट में किसका मैसेज आया, किसका क्या है, बेचैन हो जाता है आदमी। तो आपको इन सब चीजों से निकलना है, क्योंकि अगर आप एज ए एम्प्लॉय ये करोगे तो क्या होगा, आपका फिर काम हैम्पर हो जाएगा ना, है कि नहीं? यस सर। तो आपको अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लेके आना। और आप सोशल मीडिया या इंटरनेट जो भी यूज करते हो, आप अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। अभी आप जो फेसबुक यूज करते हो या व्हाट्सएप यूज करते हो, वो किसके बेनिफिट के लिए यूज करते हो, आपको पता है क्या? मेरे को नहीं पूछना चाहिए ये क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप लोग सब मान लो मेरे बच्चे के जैसे ही हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर फेसबुक का ये अल्टीमेट हाँ प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, फेसबुक का प्रॉफिट हो रहा है या जिसका डाटा कंज्यूम कर रहा है उसका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपको वो डाटा Yes, sir. खर्च कर रहे हो आप पैसा, तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उसका? सर जरूर मिलना चाहिए सर। हाँ, तो आप उसको YouTube चैनल में जाके आप एक्सेल सीखो, पावर पॉइंट सीखो, वर्ड सीखो, टैली सीखो। आजकल YouTube में सारी चीजें हैं, सारे अच्छे अच्छे वीडियो जो वहाँ हिंदी में है, इंग्लिश में है, बंगाली में है, उर्दू में है। और आप एक बार सीखोगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो क्लास के टीचर से भी अच्छा पढ़ा रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को ना सेल्फ डेवलपमेंट, इसको मैं कहता हूँ हमेशा, सेल्फ डेवलपमेंट इज द बेस्ट डेवलपमेंट। तो आपको स्वयं को, अपने आप को क्या करना है, विकसित करना है, तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। और अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करोगे और आप सोचोगे दूसरे पे डिपेंड होगा, कोई आके करने वाला नहीं है। आपका खुद का चीज है, खुद की समस्या है, आपको खुद को सोल्व करनी है। अदरवाइज नो बॉडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आज जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, किसी ने मेरे को पूछा सर सीवी कैसे बनाएं, तो आप क्यों नहीं गूगल में जाते? मैंने जो चीजें बताई, बेसिक फंडामेंटल बताया ना मैंने आपको। यस सर। आप गूगल में जाइए और वहां देखिए कि सीवी कैसे कैसे नए तरीके से बन रहे हैं। मैं तो भेज ही दूंगा आपको, लेकिन आपका खुद का इनिशिएटिव भी होना चाहिए। अरे सर ने तो बोल दिया, चलो गूगल करके देखते हैं एक बार, यूट्यूब में देखते हैं कि सीवी में क्या क्या है। सिर्फ मेरे सेशन पे डिपेंड नहीं रहना आपको, या मैं दूंगा तो आपको कुछ करना है, वो वैसे मत कीजिए आप लोग। अभी तो सीवी का टेम्पलेट ऑनलाइन में अवेलेबल होता है फ्री में। आप टेम्पलेट में जाइए, अपना नाम और वो डालना शुरू कीजिए, वो आपको सीवी क्रिएट करके फ्री में दे देगा। अब वहां देखिए कि लोगों का सीवी कैसे कैसे है, सीवी का फॉर्मेट कैसे कैसे है। अच्छा, ये भी एक बताता हूँ, ये सीवी का फॉर्मेट भी हर साल चेंज होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब जॉब करने गए थे फर्स्ट टाइम, तब तो सीवी का नाम ही नहीं होता था, तब तो बायोडाटा बोलते थे, है कि नहीं? तो बायोडाटा में क्या होता था, ऊपर लिखते थे बायोडाटा, फिर नाम लिखते थे, फिर फादर्स नेम लिखते थे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखते थे, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखते थे, ऐसे करके उसको लंबा बनाया जाता था। तो वो चला गया सिस्टम, फिर 2000 2001 2 तक था वो सिस्टम चला गया। उसके बाद एक नया सिस्टम आया। अगर आप अभी कोई कोरेस्पोंडेंस या इंग्लिश के बुक्स में भी पढ़ोगे
तो वहां पर भी वो पुराना मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है, पुराना आपका ये सीवी का या फॉर्मेट दिया हुआ, रिज्यूम का फॉर्मेट दिया हुआ। तो अभी आपको सबसे पहले क्या है, आप गूगल में जाइए, आप यूट्यूब चैनल्स देखिए कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ द सीवी क्या है, किस तरीके के सीवी अभी लेटेस्ट बन रहे हैं। आप अगर हो, आप शांतनु सर को दे दीजिए, आप मेरे को भेज सकते हैं सर के थ्रू, तो मैं चेक भी कर दूंगा यहाँ गलती की आपने, आप इसको ऐसे चेंज करो, कैसे इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि हर स्टूडेंट की क्वालिटी अलग होती है, इसलिए उसका सीवी भी एक नहीं हो सकता, सबका सीवी भी अलग अलग होगा। जब सीवी अलग होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन भी उसी हिसाब से होगी, क्योंकि आप है, आप दूसरे नहीं बन सकते हो कभी। और हम रेगुलर लाइफ में क्या करते हैं, इसकी कॉपी कर दी, दूसरे की कॉपी कर ली, तो वैसे नहीं होगा ना। सीवी आपका खुद का एक क्या है, मतलब इट इज जस्ट लाइक ए मिरर, एक आईना है। आप अगर अपने आप को खुद को दर्पण में देखते हो तो वो दूसरे का चेहरा दिखाता है या आपका चेहरा दिखाता है? खुद का चेहरा दिखता है। हाँ, वैसे ही वो सीवी भी आपका क्या, एक मिरर है, आपका आईना है। वो आपको शो करता है किसको, दूसरे को। समझ में आया मेरा बात? एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई ये चीजें। तो आप अपना सीवी गूगल में सर्च कर सकते हो, मैं आपको भेज भी दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से अपना इनिशिएटिव लेके करो, दूसरे पे डिपेंड मत हो, मेरे पे डिपेंड नहीं होना आपको खुद पे डिपेंड होना। अरे मेरे को सर ने कहा चलो मैं गूगल करके देखती हूँ सीवी क्या है, या गूगल करके देखता हूँ कैसे सीवी बनता है, आजकल नए नए सीवी किस तरीके से बन रहे हैं, मैं भी बनाता हूँ। चलो 1 घंटा कंप्यूटर में 10-20 रुपए खर्चा करके आते, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो बाहर कीजिए जाके। 1 घंटा का 10 रुपए 20 रुपए तो खर्च होगा, आपको तो सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। फिर यस सर। आपको अगर लगता है कि मैंने बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, तो उसके लिए आप मेरे को रेफर भी कर सकते हो, मेरे को भेज सकते हो, मैं चेक कर दूंगा। हाँ, मेरे को थोड़ा टाइम कम रहता है मेरे पास, फिर भी मैं 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, क्योंकि आप तो कल ही नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करने वाले हो। आप लोग क्या सभी 3rd ईयर के स्टूडेंट हो अभी? यस सर। तो इसमें ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई अभी, फंडामेंटल्स, इस पे आप काम करो। इसके बाद आपको इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस, आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको तैयार कर लेने चाहिए कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, या दूसरे और क्या क्या क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हैं। जैसे आपको ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली कि आप अकेला काम करना पसंद करते हैं या टीम में काम करना पसंद करते हैं, वुड यू लाइक टू वर्क इन ए टीम और अलोन। तो जैसे इसका एक जवाब बहुत ही क्रिटिकल है। मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने ही आपसे पूछा कि वुड यू लाइक टू वर्क अलोन और इन ए टीम, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? So I am comfortable to work in alone as well as with my team. नहीं, आपको इसको ठीक से बताना, एक्सप्लेन करना, ठीक तरीके से बताइए। आपका आंसर तो ठीक है, ऐसे खराब नहीं हुआ, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। बेसिक को आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ ए जॉब इज गिवन टू मी आई विल बी द बेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द टीम। ठीक है, ठीक से सुना आपने? If a job is given to me in a team, I will be the best contributor in the team. If a job is given to me individually, I will be the best performer of the job. समझ में आया? Yes sir. यस सर। टीम में क्या करते हैं हम, कंट्रीब्यूट करते हैं हम, क्या सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप कंट्रीब्यूशन में क्या रहोगे, बेस्ट करोगे आप। और जब अगर आपको कोई जॉब अकेले दिया जाएगा तो आप उसको बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन है जिनका आंसर बहुत यूनिक तरीके से दिया जाता है, अलग तरीके से दिया जाता है। तो ये सिर्फ सोचने का तरीका जो है वो अपने को थोड़ा सा अपग्रेड करना है कि किस तरीके से अपन नए तरीके से सोच के नई नई चीजों को अपन प्रोग्रेसिव वे में लें। और एक, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको आपका सैल्यूटेशन और ड्रेसिंग सेंस बहुत सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं हो, ड्रेसिंग का सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है कि नहीं? यस सर। तो आपको अपना अपना ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब ठीक से रखना है कि आप कैसे क्लोथ पहन के जा रहे हो, कहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो,
आपको किसी को ग्रीटिंग करना है, जैसे ही आप इंटरव्यू में गए तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी वक्त आप जा रहे हो, गुड आफ्टरनून, जिस भी वक्त आप जा रहे हो उसके हिसाब से आपको ग्रीटिंग करना है। फिर आपके आंखों का कांटेक्ट जो है, आई कांटेक्ट, वो सही रखना है कि आपने नीचे मुंह करके ही आप बात किए जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। फिर आपको कभी ये शो नहीं करना कि आप नर्वस हो रहे हो। जैसे मैं एक बार वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ कि हम लोगों ने देखा है बहुत लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो ऐसे करते हैं। आपने देखा कभी ऐसे? हाथ देख रहे हो आप मेरा? यस सर। ऐसे करते रहते लोग, फिर ऐसे करते रहते लोग। तो ये क्या नर्वसनेस के सिंबल्स है। तो जो सामने इंटरव्यू ले रहा है उसको पता चल रहा है कि आप नर्वस हो गए हो, या आपने बहुत स्पीड से अपने पैर हिलाने शुरू कर दिए, या आप सिर्फ मुंह को नीचे करके आंसर दिए जा रहे हो। तो आपको आई कांटेक्ट ठीक से रखना है, जो सामने बैठे हैं उनके सबके तरफ देखना है। अब किसी एक आदमी व्यक्ति की तरफ लगातार नहीं देखना, नहीं तो वो दूसरा सोचेगा कि मेरे को इग्नोर कर रहा है मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो आपको उसके तरफ भी देखना, उसके तरफ भी देखना, उसके तरफ भी देखना, आंखें बार बार आपको घुमानी है ताकि सब लोगों की तरफ आप देख सके। तो ये कुछ बेसिक एटिकेट्स की चीज है जो आप किस तरीके से आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो या यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में, ताकि आपको जब भी आप जॉब करने जाओ तो आपको इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैंने बता ही दिया, जब से सीवी बनाओगे तो आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से आप चेक कर लेना। बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों का देखा है कि सीवी में स्पेलिंग गलत होती है। तो स्पेलिंग को आपको ठीक से देखना है, कौन सा पार्ट बोल्ड होगा, कौन सा पार्ट नॉर्मल होगा, और साइज वर्ड्स की क्या होगी। और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने बता ही दिया, ऑब्जेक्टिव है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, पर्सनल आपकी आईटी एंड अदर स्किल्स है, सर्टिफिकेशंस है, और पर्सनल प्रोफाइल है। एक सीक्वेंस में आना चाहिए। इसको आप मिडिल ऑफ द पेज कर सकते हो। अब नए नए अभी सीवी के तरीके भी निकले, मैंने आपको बताया, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, या मैं भी आपको भेज दूंगा कि अभी आप लेटेस्ट तरीके से किस तरीके से अपना सीवी बना सकते हो। अब आपको एक चीज और बोलता हूँ, कहीं कहीं पे आपको बोलेंगे जॉब एप्लीकेशन भी लिखना है सीवी के साथ, तो आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपने जो चीज सीवी में लिखी है उसी को आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है कि आपका नाम ये है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, आपका एक्सपीरियंस ये है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड ये है, आपका सर्टिफिकेशंस ये है, आपके स्किल्स इस तरीके के, उसको पूरे एकदम लेटर वे में लिखना है। इसके वजह इसके ऊपर भी आपको बहुत सा मटेरियल इंटरनेट और गूगल में मिल जाएगा, आप सर्च कीजिए। आज तो आपके पास बहुत बड़ा साधन है, आप घर में बैठ के ये कर सकते हो ये सब चीजें। तो इस तरीके से आप अपनी ये दो चीज जो है इसको आप परमानेंटली तैयार कीजिए, सीवी और आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर को जिनके इंग्लिश पुअर है उनके लिए थोड़ा सा सजेशन है कि वो थोड़ा इसको याद भी रख सकते हैं, कुछ कुछ सेंटेंसेस को। क्योंकि मान लीजिए कभी किसी ने आप जॉब के लिए अप्लाई किया, बोले नहीं आप पेन से लिख के दो मेरे को एप्लीकेशन, कंप्यूटर में लिखा हुआ नहीं चाहिए। तो वो क्यों बोल रहे हैं, वो आपका टेस्ट करना चाहेंगे आपकी इंग्लिश कैसी है, समझ में, राइटिंग इंग्लिश कैसी है। तो उस पर भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एक बार, कि अगर मेरे को कोई जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलता तो मैं कैसे लिखूंगा। जैसे एक्सपीरियंस की स्पेलिंग क्या है, एकेडमिक की स्पेलिंग पे भी ध्यान रखना आपको। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो अभी और कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड? ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं 1 घंटा या 1.5 घंटे के सेशन में नहीं कंप्लीट करा सकता आपको। जैसे अभी सॉफ्ट स्किल्स है या कम्युनिकेशन पे है, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, या इंटरव्यू पे बहुत से क्वेश्चंस हैं। जैसे आपको किसी ने पूछा आपकी हॉबीज क्या क्या है। अब हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक होती है या अलग होती है, या हॉबीज का आपके लाइफ में क्या रोल है, या जिस रोज आप इंटरव्यू देने जाओगे उस रोज ये भी पूछेंगे कि आज की लेटेस्ट न्यूज क्या है, आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या आया है। तो ये भी बेसिक्स आपको जिस रोज आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको जानना चाहिए कि आज के न्यूज क्या थी, या कल की न्यूज क्या थी, या लेटेस्ट दुनिया में न्यूज क्या चल रही है, बिजनेस रिलेटेड न्यूज क्या है, पॉलिटिकल। अभी तो लोग ज्यादातर पॉलिटिकल न्यूज सुनते हैं, लेकिन आप जॉब या कहीं कंपनी में जाओगे तो आप पॉलिटिकल न्यूज नहीं जानना चाहते, वो आपसे बिजनेस न्यूज जानना चाहते हैं। और इसके अलावा जब भी आप जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन की बात बता रहा हूँ ये आपको।
तो आप उस कंपनी की वेबसाइट को अच्छे तरीके से देखो कि उस कंपनी का मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है, उसका बोर्ड कौन है, उसमें क्या क्या काम होते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या क्या है, उसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, उसका बिजनेस कैसा है, उसके बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, या उसकी एनुअल रिपोर्ट मिल जाए वेबसाइट पे तो उसको भी आप डाउनलोड करो और उस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान लो। तो आपको जब क्वेश्चन कोई पूछे तो आप उस कंपनी से रिलेट करके उत्तर दो, ताकि उनको लगेगा अरे ये तो कितना अच्छा कैंडिडेट है, हमारे यहाँ नौकरी करने से पहले ही इनको हमारी कंपनी के बारे में इतना कुछ पता है कि नहीं? सही है गलत है? Yes, sir. तो जब आप Yes, sir. जब आप जब आप किसी को ये साबित कर दोगे कि भाई मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आप नौकरी में मेरे को रखोगे, उससे ज्यादा इंटरेस्टेड मैं आपके यहाँ काम करने में हूँ, तो आपको हमेशा इस चीज की एडवांटेज मिलेगी और आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको आप एज ए एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने शुरू किया था इसी बात पे कि एक स्टूडेंट को एम्प्लॉय में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये आपको मेंटल मैकअप अभी से शुरू करना चाहिए कि एक एम्प्लॉय की स्किल्स क्या क्या है। इसको भी आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे कि एक एम्प्लॉय की स्किल्स क्या क्या होती है, उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। आप फिर अपने आप को देखो कि मेरे पास क्या क्या है, क्या नहीं है। जो नहीं है उसको आप डेवलप करो। अभी तो आपके पास टाइम है 2 4 5 6 महीने, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे और जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ, आप ये स्किल्स पे अच्छे तरीके से काम करो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपको जॉब नहीं भी करना है कहीं पे, छोटी मोटी कोई कंपनी है, आपको लगता है नहीं यहाँ जॉब नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी करना है, फिर भी आप इंटरव्यू दे के आओ, तो क्या होगा, आपको एक एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस होगा तो जब आप कहीं अच्छे जगह इंटरव्यू देने जाओगे तो वो एक्सपीरियंस आपके काम में आएगा कि वहां तो मेरे को ऐसे पूछा तो मैंने ऐसा जवाब दिया, तो ऐसे, तो शायद वो आपको सेलेक्ट भी कर ले। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था मैं बहुत इंटरव्यू देने जाता था, लेकिन मैं कहीं जॉब नहीं किया। मैं सिर्फ देखने के लिए जाता कि देखिए मैं कैसा कर सकता हूँ। मेरे को जॉब मिल भी जाता था, फिर भी मैं नहीं करता था, क्यों? मेरे को सिर्फ सीखना था कि नई नए क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, उनके जवाब कैसे देने हैं, लोग किस तरीके से है। तो आपको समय से थोड़ा आगे सोचना है चीजों को कि फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से होगा। कि आप चाहे जॉब करो चाहे मत करो, वो एक अलग बात है। आपको ये भी लग सकता है मैं तो किसी का टाइम खराब करने के लिए, नहीं, ऐसे नहीं है। आपको एक्सपीरियंस भी करना ना। नहीं, आपको कैसे एक्सपीरियंस होगा अगर आप नहीं जाओगे तो? आपको तो घर में आके कोई इंटरव्यू नहीं लेगा आपका। तो इस तरीके की कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए, और अगर कहीं अच्छा जॉब मिल जाए तो कर भी लेना चाहिए। फिर ये भी हो सकता है ना कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए और आपको बहुत अच्छा जॉब मिल गया, तो आप क्यों छोड़ोगे, फिर आप कर लो फिर। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आज आपको बताई। शायद मेरे को लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा इससे। रेस्ट तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कैसे यूज करोगे। बस मेरे को यहीं तक कहना था। अभी आपको किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना हो तो आप मेरे को फ्रीली पूछिए। इंग्लिश, বেঙ্গলি, হিন্দি, whatever the language you want to talk, you can talk. তো যারা বাংলায় কথা বলতে চাইছে, they can also talk to me in Bengali. Yes, sure, sir. Sir, you have discussed everything very lucid manner and in a very easy language. So, students, if you want to ask any question, you can ask in your comfortable language, because sir is comfortable in all the 3 languages. So, please, if you have any queries, you can ask. Sir is here to answer your questions. Anyone? Do you want to ask any question to sir? Yes, participants. Anjali Saw has raised her hand. Please, Anjali, do you have any query? नो सर, गलती से हो गया। Okay. So, अरे गलती से क्वेश्चन भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। yes, excellent. If you have any query, you can ask. Hello sir, good morning. Yes, good yes. morning. My name is खुशबू कुमारी। सर हम डीबी कॉलेज से पास आउट है, 2020 के स्टूडेंट हैं। सर हम पूछना चाह रहे थे कि जैसे हम तो बीकॉम करने के बाद अगर पढ़ाई को स्टॉप कर दिए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वैसे में क्या करना चाहिए सर? अभी आप क्या करते हो, फिर घर में रहते हो? नहीं, अभी हम कंप्यूटर सीख रहे हैं और कंपटीशन का थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं खुद से। अच्छा, आप कंप्यूटर में क्या सीख रहे हो?
सर अभी टेली प्राइम चल रहा है तो टेली प्राइम सीख रहे हैं। टेलीप्राइम सीखो और इसके संग मैंने बताया ना आपको एक्सेल जरूर सीखो आप। ओके सर। ठीक है, एक्सेल सीखो और आप जॉब के लिए एप्लीकेशन करना शुरू करो ना कंपनियों पे, तभी तो आपको नौकरी के लिए या हाँ कहीं सर। पे। हाँ बोलो। सर किए हैं लेकिन फिलहाल तो अभी फिलहाल हम लोग को वो सोर्स नहीं मिलता है ना कि जॉब के लिए कहाँ से अप्लाई करें, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ओके सर। इसका मतलब आप जो कोशिश कर रहे हो ना, आप पूरी 100% कोशिश नहीं कर रहे हो। आप रोज कितने कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करते हो? सर एवरीडे तो नहीं किए हैं, एक दो में दिए हैं। नहीं, हाँ, इसलिए आपको 2 में 0 आएगा। आप 100 में करोगे तो 2 आएगा। समझ में आया मेरा बात? यस सर। आप रोज वेबसाइट में जाओ, नई नई कंपनी को खोजो। आप सिर्फ आसनसोल में करना है या आपको आसनसोल के बाहर भी पेरेंट्स भेज सकते हैं? हाँ सर, कोलकाता जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई। हाँ, तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ, आप ना जॉब खोजो दूसरे कंपनियों पे, वेबसाइट पे, और अगर जॉब नहीं हो ना तो भी आप अप्लाई कर दो। सुनो मेरी बात। हाँ सर। तो भी आप अप्लाई कर, क्या करना है, आप अप्लाई कर दो और आप टारगेट रखो कि महीने में मैं हर रोज एक नौकरी की अप्लाई करूंगी। कितनी? एक। जब आपका 100 हो जाएगा ना, तब आप खुद मेरे को कॉल करके बोलोगे सर मेरा 4-5 कॉल आ गए हैं। यस सर। सर वैसे इनको क्या वेबसाइट। कहते हैं, इनको फोर्स एप्लीकेशंस कहते हैं। कभी कभी आपको वेबसाइट पे मिल भी जाती है, कभी नहीं भी मिलती है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं। यस सर। समझ में आया मेरा बात? आपको एडवर्टाइजमेंट हमेशा नहीं करते हैं वो, लेकिन उनको जरूरत है काम की, लोगों की। तो जब आपको आपकी एप्लीकेशन देख के लगे कि अरे इसका एप्लीकेशन आया है, इसको जॉब मिल सकता है, तो फिर करना चाहिए ना। और जो नई नई कंपनी आ रही है आप उनमें ट्राई करो, कोशिश करने की। अभी जैसे रिटेल में इतनी कंपनी आ रही है, आपकी रिलायंस स्मार्ट है या बिग बाजार, ये आपका जो ग्रेट ईस्टर्न है, या जो रिटेल मैनेजमेंट की कंपनी स्पेंसर है, मोर है, इनमें आप अप्लाई करो। जैसे आपको अभी मेडिसिन से रिलेटेड ये कंपनी है ना, बैंक है या अपोलो है, आप इनमें अप्लाई करो ना, आपको मैं बता रहा हूँ 3 महीने 4 महीने में जॉब मिल जाएगा। ओके सर। क्योंकि आपको ये देखना है कि मार्केट में अभी किस तरीके की इंडस्ट्री की ग्रोथ है। अभी जैसे पोस्ट कोविड में या कोविड में हमने देखा मेडिसिन की बहुत ग्रोथ थी, मेडिकल कंपनीज की। अगर आप वैसे में अप्लाई करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। रिटेल मैनेजमेंट या रिटेल मार्केटिंग की जो कंपनीज है उनमें आप अप्लाई कीजिए, उनमें आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। लोग खोजते हैं लोगों को कि मेरे पास कुछ अच्छा एम्प्लॉय मिले, और आप बोल रहे हो मेरे को जॉब नहीं मिल रहा। सर वैसा पता नहीं है ना वेबसाइट कि ऐसे फेसबुक पे बहुत सारे फेक भी आते हैं। अरे तुम जाओ गूगल पे और जाके इंटरनेट खोल के सर्च करो कि कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट चल रहा है अभी। अपना लिंक्डइन में अकाउंट बनाओ, वहां पे कितने प्रोफेशनल्स तो है। लिंक्डइन में अकाउंट है। हाँ, तो उसको रेगुलर एक्टिवेट रखना है ना, और आपको खोजना है कि भी कहाँ कहाँ जॉब मिल रहा है। आपको किस तरीके का, आपको ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर के हिसाब से आप घुसने का कोशिश करो पहले, या अकाउंटेंट के हिसाब से घुसने का कोशिश करो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, दीपक कुमार बनवाल प्लीज। सर बोले कि जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं सर तो कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा जाता है सर, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए मैंने बताया ना आपको, आप घर में जो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ये है, इसका प्रैक्टिस करो। आप मैंने क्या कहा इसके पहले कि आप जाके इंटरव्यू दो, आपको नौकरी करना है या नहीं करना है। छोटी मोटी दुकान, कहीं पे भी छोटा बिजनेस, ऑफिस, मार्केटिंग, नौकरी, कोई आपको जो नहीं करना है उसमें जाके इंटरव्यू दो आप 4 बार, तो आपका कॉन्फिडेंस फिर वो डगमगाएगा नहीं कभी। बिकॉज सर नेट प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है सर। क्रिकेट में जैसे नेट प्रैक्टिस होता है ना, तो ऐसे नेट प्रैक्टिस यहाँ पे जरूरी है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले, दीपक, क्या करना चाहिए, मेरी बात सुनो। आप तो जहां जॉब नहीं करना है वहां पे भी आप इंटरव्यू 2-4 बार। अगर आपसे अभी कोई पूछे आपको ये भी 1+1 कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 होता है ना, तो सही जवाब है। लेकिन आप जब नर्सरी में थे, आपसे कोई पूछा 1+1 क्या होता, तो थोड़ा सा हार्ट बीट चेंज, जब मम्मी पापा क्या पूछ लिया, अभी तो चाटा लग जाएगा, कहीं 3 नहीं बोल दो। तो वो आपने 1+1 प्रैक्टिस करते 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 आज आपका कॉन्फिडेंस आ गया, 1+1 तो 2 ही होता है यार, 4 तो नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता है। वैसे ही इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी होते हैं, जब आप एक बार देने लग जाओगे। अभी मैं आपके सामने बैठ के
लेक्चर दे रहा हूँ ना, तो मैं भी तो कभी स्टूडेंट था, मेरा भी तो दिल में ऐसे धड़कन हुई होगी ना कभी, कह रहे इंटरव्यू में Yes, क्या sir. पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कैसे जवाब दूंगा। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये है ना इंग्लिश में एक बात। तो आप 2-4 जगह कहीं पे भी कलकत्ता में आके, कहीं क्रेडिट कार्ड का कंपनी है, कहीं बैंक का है, कोई इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस की तो सारी कंपनी अभी नौकरी पे रखती है। किसी ने मेरे को अभी पूछा ना, किसने पूछा था कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल ये सब कंपनियां तो रोज एम्प्लॉय खोजती है। आप सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए जाओ ना, आपको नहीं करना, आप 2 दिन 4 दिन काम करो ना, उसके बिजनेस के बारे में पता तो करो। 2 दिन आपका जिंदगी का क्या है, आपको क्या लग रहा है कि आपको खराब होगा? नहीं, खराब नहीं होगा, वो आपका एक्सपीरियंस होगा। मैं दीपक को सर ही बोल खुद रहा का हूँ, तुम बेइज्जती जाके कोई लगता है सर, अगर सही से आंसर नहीं दे पाए तो। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, आप एक काम करो, आप 3-4-5 इंश्योरेंस की कंपनी पकड़ लो और 5 में जाके इंटरव्यू देके आ जाओ। आपको 5 कंपनियां सेलेक्ट करेगी, आप इंटरव्यू दे के तो आओ। आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल है या जो भी है, जहाँ पे ऑलवेज एम्प्लॉय की क्या डिमांड है, वहां पर वहां लोग नौकरी खोजने के लिए वो खोजते हैं कि उनके यहाँ नौकरी कोई करने आए। ओके सर, थैंक यू। तो आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, आप कर भी सकते हो। अब जैसे बैंक है, अभी जितने बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक है या आईसीआईसी बैंक है, इनमें भी एम्प्लॉय हमेशा लेते हैं लोग ही। या बंधन बैंक है, एम्प्लॉय हमेशा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको अकाउंट नए खुलवाने हैं, लोगों के घर भेजने हैं। जूनियर लेवल का जॉब है जो सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को मिलता है। तो आप कोशिश करोगे तभी होगा ना। आप सिर्फ अपन घर में बैठ के सोचेंगे अपने को कोई आके नौकरी पे बुला के ले जाएगा, तो ये तो संभव नहीं। और एक चीज सर, कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो पहले अगर हमको हाँ। बड़ा काम मिलेगा ये सोच रखना भी गलत होता है। छोटा बड़ा क्या काम है? काम तो काम ही है। काम ही है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि मेरा ये काम है, तो अब हम क्यों ये छोटा काम में अभी जाएंगे। तो ये हमको, जैसे आप बोले ना कि बंधन बैंक कहीं कस्टमर के घर भेजेंगे तो आना जाना, तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो एक्सपीरियंस होते होते एक दिन वो बहुत बड़ा जगह पहुंच जाएंगे। जो भी काम किए तो उसको छोटा जगह से ही स्टार्ट करना होता है। बिल्कुल आपके सर ने देखो कितनी अच्छी बात बताई है। तो आप जब 0 से शुरू करते हो ना, पहले दिन पैदा होते ही पैदल थोड़ी चलने लग गए थे। 4 बार गिरे थे, उसके बाद ही पैदल चले ना। और अभी भी लड़खड़ा के कभी चोट लगी जाती है ना, गिर जाते हैं ना, अभी भी वैसे ही जॉब है। भी आप जब करोगे तो एक दिन खड़े होके आप चलने लग जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने भी देखा है कि हम जो पढ़ते हैं बस जो थियोरेटिकली देखते हैं वो प्रैक्टिकली एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। तो प्रैक्टिकली इसको रियली एक्सपीरियंस करना है कि एक्चुअली होता कैसे है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब मैं आपको वो हम लोग टीचिंग फैकल्टी वो हम नहीं दिखा, हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट समझा देते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, ये पर सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ थियोरेटिकली है। एक्चुअली रियल लाइफ पे क्या होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू ग्रो, आई थिंक। ये जो आपने कहा ये एक बहुत बढ़िया बात की। देखिए मैं भी इतने साल प्रोफेसर था, तो ठीक है हमने थ्योरेटिकली पढ़ाया और एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करने उतरते हो दूसरे तरीके का, जैसे अभी मान लीजिए हमको बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है और एकदम अलग लेवल है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का काम है, तो हमारे पास काम का प्रेशर भी उतना होता है, हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए नए तरीके भी खोजने होते हैं। और पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड में तो हमको बहुत कुछ सिखा दिया, जो चीज कभी सीखते ही नहीं थे। आज ये ऑनलाइन क्लास है, ये मान लीजिए हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोगों ने तो कभी नहीं किया था। हमारे टाइम तो मोबाइल भी नहीं था, शायद आपके टाइम पे तो मोबाइल आ गया, मेरे टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं था। हम तो लैंडलाइन को भी नंबर घुमाने के लिए 4 बार डरते थे किसी पुलिस स्टेशन में नहीं लग जाए। सही बात। तो अब आज मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ आपको? सही। आपको रेगुलर सीखनी है, अपडेट होना, अपडेट रखना है खुद। हाँ, अपडेट एंड अपग्रेड। यस एब्सोल्युटली, आपको अपग्रेड करना है। आप अपने मोबाइल को जैसे अपग्रेड करते हो, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हो, वर्जन आपका चेंज होता है, आपका भी वर्जन चेंज होना चाहिए। सही साइकोलॉजिकल दिमाग से है। एकदम। Okay, so I think students have no queries. So thank you so much, sir. So हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कनेक्शन हो कि जॉब वगैरह या हाँ, मैं आपको रेफर कर दूंगा, मुझे थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा तो आई विल कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट गिव यू द
vote of thanks. So first of all, I would like to thank our honorable principal sir, Professor Dr. Amitabh Basu, for his constant guidance and encouragement on behalf of the Department of Commerce, Hindi Seat, Banwarilal Balotia College, Asansol. I express my heartfelt gratitude to Dr. Sushil Kumar Parekh sir for taking out time from his busy schedule and delivering a special lecture in our department on different aspects of CV writing and soft skill. Sir, your gracious presence and enlightening words have surely enriched our students and also us. The way you have made the session interactive is really remarkable. Your thoughts and ideas have truly inspired us and our students. We are looking forward for more such interesting session from you in near future also. I would like to say thank to all my dear students for their kind participation in the session. And last but not the least, I would like to take the opportunity to thank our HOD, Mohammad Arif Akhtar, Dr. Amolendu Samonto, the other colleagues, Dr. Amolendu Samonto and Ms. Saroj Mahato, for making this program successful. And lastly, I have said that I'm saying thank you, sir, and thank you all to be here and listen the session. So thank you, sir. So now, Thank you, sir. okay, how will you enjoy Thank the you, session? sir. कैसा लगा session? So it was the best session attended, sir. Uh-huh. Please give your feedback. So one of the best session I have attended. The experience. Thank you so much. मुकेश, तुम कुछ कहना चाहते थे? No, sir. Just feedback बोले सर. Best session था सर. बहुत अच्छा लगा. Okay. और बाकी लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था इस सेशन का? प्लीज शेयर योर फीडबैक. बहुत अच्छा था सर. अच्छा था ना? ठीक है. तो ऐसे हम लोग सेशन करते हैं, तो ट्राई टू अटेंड दोस. सर. So सर के लिए एक बार हुआ था कि कुछ प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग को इंटरव्यू कैसे दिया जाता है इसके लिए बताया जाएगा, तो वो वैसा कभी होता है कॉलेज में. अच्छा ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक डेमो इंटरव्यू सेशन कैसे होता है तो इसको भी हम लोग अरेंज कर पाएंगे तो बेहतर रहेगा. एंड लास्टली थैंक यू सो मच सर. Parekh sir. Yes, I'm really thankful to Dr. Sandanu Malik sir for taking so much pain for the students' cause. And I'm really very happy that if I can help out these students Yes, in any way. The reason is that because I think that life has to progress. Absolutely. And for that, if we can put some of our efforts to make these students progressive in thinking, rather, so that they can achieve their goals in their life. And as a human being, I feel that everyone must help out these younger kids so that someday they will remember all of us that we have done something for them. Not only that, at least they will contribute something for the country as a whole. Exactly. That's what my message is to their parents also. Greater motive of this. And parents also, because their parents are working so hard to make them graduate. So it is the responsibility of a student, it is a responsibility of the society and all of us to help out these students to achieve their goals in their life. And I wish that every student will have a great and successful career ahead in their future. Thank you so much, sir. And if it is possible, we can arrange this type of session in future also. And one student has raised one question that if we can arrange one demo interview type of thing, so that will be. Yes. In further, we can arrange some demo interview session online only. Yeah. So there is no physical need. So we can fix some time and we can do that also. Yes. We will communicate with you and then we can arrange. Yes. Okay. So thank you so much, sir, for accepting our proposal and making the session such a nice. And thank you. My last thanks to all the students, those who have listened me so
so meticulously and so patiently. Absolutely. So I think that it will give them a good benefit out of it. Thanks, everyone. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so now that's Thank you, sir. That's all for today. We will again join with some other programs in near future. Okay. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank Even you, you can sir. leave. You can leave now.